الدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. ایک طویل مدت کے بعد اللہ رب العالمین کی عنایت سے ہم سب کو یہ موقع حاصل ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کر سکیں جہاں قال اللہ اور قال رسول کی باتیں ہوں، قرآن کریم اور حدیث کی کا بیان ہو سکے. اس طرح کی محفلیں بڑی مبارک محفلیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ان محفلوں کو ہمارے لیے مفید اور بابرکت بنائے. جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی مشکل ایام ہیں، اور دیکھیں اور غور کریں تو ہم پائیں گے کہ یہ زمانہ ہی دراصل فتنوں کا زمانہ ہے. بہت طرح کی فتنے اور بہت طرح کی آزمائشیں انسانی سوسائٹی کو گھیرے ہوئے ہیں، جس میں مسلم معاشرہ بھی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ کسی مشکل سے ہم لوگ آسانی سے نکل جاتے ہیں یا بڑے سے بڑے فتنے کا ہم لوگ سامنا کر لیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے اور اس کے حکم سے، اس کی مشیت سے ممکن ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے تمام فتنوں سے نکلنے کا سامان مسلمانوں کو دے رکھا ہے. جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر مشکل میں اور ہر فتنے سے نکلنے کے لیے قرآن کریم کی طرف، اللہ رب العالمین کے فرمودات کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے تو بڑے سے بڑے مشکل کا اور بڑے سے بڑے فتنے کا وہ آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں. اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں مشکلیں بڑی بڑی ہیں وہیں فسادات بھی اور فتنے بھی بڑے بڑے ہیں. اتنا مشکل دور ہے کہ اس زمانے میں نئی نسل کا جینا یعنی پوری طرح سے اپنے آپ کو پاک دامن رہ کر جی لینا بہت مشکل ہو چکا ہے. یہ باتیں آج کے زمانے میں جتنی مشکل ہیں یا جتنا بڑا فتنہ اس زمانے میں ہے یہ شاید پہلے کہ کسی دور میں نہیں رہا ہے. آج یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ایسی صورت میں بہت سارے امکانات ہوتے ہیں کہ بچے اور نئی نسل کے لوگ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے. لیکن فتنہ یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر وہ ساری تدبیریں بتائی گئی ہیں جن سے انسان ایک صاحب ایمان فتنوں سے کامیابی کے ساتھ دامن کو بچا کر آگے نکل سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں آج کے درس کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے، اور دراصل یہ ایک عجیب و غریب قسم کی حدیث ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے صحابہ وہاں موجود تھے. ایک بالکل ینگ صحابی رسول، ایک نوجوان صحابی آپ کے ساتھی جو پیچھے تھے اس محفل کے اندر، وہ آتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول ہمیں زنا کی اجازت دے دیجیے. یعنی یہ ایسا سوال تھا اور ایسی محفل کے اندر تھا کہ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے جو صحابہ کرام وہاں بیٹھے تھے. اور کچھ لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان سے کہا ماں اس کو یعنی خاموش ہو جاؤ، مت کیسا سوال ہے. کچھ لوگوں نے ان کو ڈانٹا بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہ کیا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اور آپ کا اخلاق و کردار ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی کو ڈانٹ کے کچھ سمجھا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا. معاملہ یہ تھا کہ صاحب ایمان تھے، یہ صحابی رسول کے دل کے اندر ایمان کی قوت راسخ تھی، اور دوسری طرف وہ نوجوان تھے اور معاشرے کے اندر بہت کچھ ہوتا رہا ہوگا جو کہ غیر مسلم معاشرہ تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر بھی کچھ باتیں آئیں، کچھ خیالات پیدا ہوئے. یعنی عنفوان شباب کی سرمستیاں ایک طرف سر چڑھ کے بول رہی تھی اور دوسری طرف ان کی ایمان کی قوت تھی جو ان کو گناہ کرنے سے روک رہی تھی. ایمان کی قوت کی بہت ہی عجیب اور بہت ہی زبردست قوت ہوتی ہے. جب کسی انسان کے اندر یہ قوت موجود ہوتی ہے پوری طرح سے، تو وہ صاحب ایمان کو یعنی ایمان کی قوت اپنے صاحب ایمان کو گناہ کرنے سے روک لیتی ہے.
इसलिए कि ईमान ऐसी चीज ही है। लेकिन अगर फिर भी इंसान से अगर गुनाह हो जाए, किसी साहिब ईमान से गुनाह का इर्तिकाब हो जाए, तो फिर वहाँ ईमान का रोल और किरदार बहुत बड़ा होता है कि साहिब ईमान को वो नादिम और शर्मिंदा होने पर मजबूर करती है। वो ईमान की कुव्वत जो है उसे मजबूर करती है कि वो नादिम और शर्मिंदा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इनाबत करे और तौबा करे। ये कुव्वत इंसान के अंदर होती है। तो उस सहाबी रसूल ने, उस नौजवान सहाबी रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में इस तरह की जब इजाजत चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने पास बुलाया, बैठाया। वो बैठते हैं और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाया, और ये तफसील से पूरा वाक़या आप लोगों ने बारहा सुना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, बात उनके समझ में आ गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उनके ऊपर रखा और उनको दुआ दी, अल्लाह मग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। इस दुआ को हम लोग याद रखें कि ये बहुत ही अजीम दुआ है, 3 कलमात पर 3 जुमलों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस दौर के अंदर ये बेहद जरूरी दुआ है। हर शख्स से सीखे और अमल करे, और अपने लिए भी, अपने माशरे के लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी। इसलिए कि अगर हम अपने आप को गुनाहों से बचाए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दी है तो हमको औलाद का भी भला सोचना है, और यही अंबिया का तरीका था। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज को सिखाया है और इस चीज की तारीफ की है। ऐसे लोगों को पसंद किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपनी औलाद के लिए दुआएं करते हैं। सूरह अहक़ाफ़ में जब हम पढ़ते हैं तो सूरह अहक़ाफ़ में जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक की बात कही है कि उनके साथ एहसान भरा सलूक करो, और फिर ये बात जिक्र की कि जब इंसान 40 साल की अपने पुख्तगी को पहुंचता है और 40 साल की उनको पहुंचता है और फिर वो दुआ करता है, रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा। उसके बाद वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। इस दुआ के बाद में एक और दुआ है कि अल्लाह तू मेरे लिए, मेरी औलाद में, मेरी नस्ल में तू सलाह डाल दे, यानी मेरी औलाद को तू नेकोकार बना दे, फसाद से, फित्नों से उनको दूर रख दे और उनको नेकी के रास्ते पे लगा दे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह अहक़ाफ़ के अंदर ये आयतें जहाँ जिक्र की है, ये ऐसा करने वालों की तारीफ के अंदाज में उसी सियाक़ में इसका जिक्र किया है। इसीलिए मुफ़स्सिरीन और उलमा ने इससे इस्तिदलाल किया है कि जो शख्स अपनी औलाद की सलाह की, उनकी फसाद से दूरी की दुआएं करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब बंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पसंद करता है और उसके इस अमल को भी पसंद करता है। मालूम ये हुआ कि हर शख्स को जहाँ अपनी फिक्र करनी चाहिए वहीं अपनी औलाद की भी फिक्र करनी चाहिए, और अपनी औलाद के लिए सलाह दुरुस्ती की वो दुआएं करे, और ये उम्मीद रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ को कबूल करेगा और हमारी औलाद को नेक बनाएगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की तारीफ की है, और इसी आयत के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनके अच्छे अमाल को हम कबूल करते हैं और जिनकी बुराइयों को हम दरगुजर करते हैं। मालूम ये हुआ कि ऐसी दुआ अगर इंसान करता है और एक बाप की दुआ अपने बेटे के लिए ये बिलखुसूस कबूल की जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो एक बाप अपने औलाद के लिए दुआ करे, उसी तरह जो शख्स भी माशरे के अंदर है, जो लोग भी जिनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान दिया है, उनको भी चाहिए कि अपनी दुरुस्तगी की दुआ करें। जब इंसान अपने लिए दुआ करे तो इस चीज को ऐसे कहे, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबी व तहिर क़ल्बी व हस्सिन फ़रजी। या अगर बेटे को दुआ देना है तो जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जंग सहाबी के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। तो ऐसे दुआ देता है इंसान कि अल्लाह तू इसके गुनाहों को माफ कर दे, इसके दिल को पाक साफ कर दे, यानी दिल के अंदर जो ख्यालात मचल रहे हैं इन ख्यालात को तू निकाल दे और वहाँ पाकीज़गी को डाल दे, अच्छे ख्यालात को डाल दे, अच्छे इरादे को डाल दे, ताकि जो ख्यालात बने हैं वो इरादे की शक्ल न ले, वो खत्म हो जाए, वो वहीं वो फना हो जाए, और बच्चे का दिल या माशरे में कोई शख्स भी है उसका दिल साफ सुथरा हो जाए और उसका ईमान को पुख्तगी और जला मिल जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इस यंग साहबी, अपने इस नौजवान साहबी के लिए, अपने साथी के लिए दुआ की तो हुआ क्या, फ़क़ामल ग़ुलाम मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा ला यजिदु शैअन मिन ज़ालिक। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो उसके बाद वो जब वहाँ उस महफिल चुके हैं तो उनके दिल के अंदर जो भी मैलानत थे, गलत किस्म के रुझानत थे, वो सब के सब खत्म हो गए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से हमको सीखना है।
जो कुछ भी हमें मांगना है वो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना, उससे तलब करना, ये बेहद मुफीद चीज होती है। और अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों के अंदर हर चीज को सिखलाया है कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम लौ लगाएं, कैसे उसके सामने हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम अपनी बातों को रखें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें औलाद दे और उसे नेक बनाए तो भी हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अगर नेकी के रास्ते पर रखा है तो ये बहुत बड़ा उसका करम और मेहरबानी है। इस पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और शुक्रगुजारी का एक बहुत बड़ा तकादा यह है कि हमको मजीद नेकी करनी चाहिए। और इसी तरह अगर हम देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औलाद को नेकी के रास्ते पर लगाया है तो उस पर भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बने। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको औलाद दी, और उनको औलाद दी कैसी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में, तो जब उनको औलाद दी तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अल-किबर इस्माइल व इसहाका इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफ, तमाम शुक्रिया उस अल्लाह का है जिसने हमको बुढ़ापे में इसहाक और इस्माइल जैसी औलाद दी। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है, यानी वो दुआओं को कबूल करता है। और उसने मेरी ये दुआ कबूल की, मैंने बुढ़ापे में दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बुढ़ापे में औलाद दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकल किया है। तो यहाँ से हम समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो भी नेमत हमारे ऊपर है, चाहे वो ईमान की शक्ल में हो, आमाल सालिहा की शक्ल में हो, नेक औलाद की शक्ल में हो, कारोबार की शक्ल में हो, हर चीज पर हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार होना चाहिए। सेहत और तंदुरुस्ती दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इसकी हम कदर जाने, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में उसको लगाएं। ये नहीं कि हम फुर्सत के औकात को, सेहत और तंदुरुस्ती को यूं ही ज़ाय कर दें, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें। और शुक्र का माना ये हुआ कि हम मजीद नेकियां करते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं का कबूल करने वाला है। तो जब भी हमको कोई चीज की जरूरत हो तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस चीज को मांगे और अपनी आदत और वतीरा बना ले कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगा के रखें और हम अपनी हर जरूरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों के अंदर जो हमको सिखलाया है, जो दुआएं बताई हैं, उन सब को हमको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।